الرحمن الرحیم جیسا کہ دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر کا جیسے انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، ڈیفرنٹ قسم کی مشینری کا یوز کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال ہو رہا ہے، چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے فریزرز کا یوز ہو رہا ہے، اس طرح کی ڈیفرنٹ جتنا انسان جو ہے وہ سہولتوں میں اور جدید معیار زندگی کو اپناتا جا رہا ہے، اتنے ذہنی مسائل، صحت کے مسائل میں الجھتا جا رہا ہے، اور ہر دوسرے سے تیسرا بندہ یہ جو فوڈ ہم کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کی بیماریاں ان کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ہر گھر میں مریض پائے جاتے ہیں اور لوگ بھاری برکم جو ہے نا وہ خرچ کر کے ان کا علاج کرواتے ہیں، پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل کے امراض ہیں، معدے کے امراض آج کل بہت عام ہیں، 90% لوگوں میں یہ معدے کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے یہ دوست ہیں، مطلب ندیم بھائی جم انسٹرکٹر بھی ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، یہ حکمت سے منسلک ہیں، یہ ہمارے جو یہ بزرگ شخصیت ہیں، یہ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہیں۔ تو میں بھی ان کے پاس آیا تھا، تو اپنے میرا بھی معدے کا مسئلہ تھا، تو اس سلسلے میں کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے نا یہ اپنا مطلب ان کا طریقہ علاج کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آج کل جو ہے ہاسپٹلز وغیرہ میں انگلش میڈیسنز ہیں، وہ جو ہے نا ان پہ لوگ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں اور انہی سے علاج کروا رہے ہیں۔ یہ ہربل میڈیسنز جو ہیں یا حکمت والا، اس پہ لوگ بلیو نہیں کر رہے۔ یہ کارڈ ہے ان کا حکیم صاحب کا، اس پہ ان کا نمبر وغیرہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور نام بھی ان کا لکھا ہوا حکیم محمد طفیل، یہ ان کا نمبر بھی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو ہے نا زیادہ تر کنسنٹریٹ کر رہے ہیں انگلش میڈیسن۔ تو آپ کو پتہ ہے انگلش میڈیسن جہاں ان کے فوائد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات بھی ہیں۔ اگر وہ ایک بیماری ٹھیک کر رہی ہیں تو اس کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی اور ہیلتھ کمپلیکیشنز آپ کو ہو جاتی ہیں ان کے کھانے سے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو مطلب آپ کا جو طریقہ علاج ہے یہ کیا ہے؟ کس طرح سے آپ مرض کی تشخیص کرتے ہیں؟ آپ جو میڈیسنز دیتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ کون کون سے امراض کا جو آپ علاج جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ آج کل جتنی میڈیسن، جتنی غذائیں، جتنی ترتیب کے ساتھ لی جاتی ہیں، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک انسان کو اپنے دن میں متوازن غذا کتنی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت کے مطابق وہ نہیں سوچتا کہ مجھے موافق کون سی چیز ہے، میری طبیعت مزاج کے مطابق فائدہ کون سی دے گی۔ صحیح۔ تیسری بات کو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں کون سی چیز ٹھنڈی اور کون سی چیز گرم کھانی چاہیے، صحیح۔ اور کس وقت گرم یا کس وقت ٹھنڈی چیز لینی چاہیے۔ صحیح۔ اور جب کہ آج سے 50 سال پہلے کا جو نوجوان اس وقت تھا، وہ آج بھی بوڑھا آج کل کے نوجوانوں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ کیوں ایکٹیو ہے؟ اس لیے اگر دیکھا جائے کہ اس وقت کیا کھانے پینے کو زیادہ تھے؟ نہیں، کھانے پینے کو زیادہ نہیں تھا۔ اگر کہیں کہ عیش و آرام زیادہ تھا تو کہیں گے کہ عیش و آرام کی گھڑیاں بھی آج کے دور میں اس وقت زیادہ حسین تھیں۔ لیکن آج جسم ایکٹیو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے پہلی بات کہ جو معالج ہمارے دیسی یا انگریزی ہربل یا ہومیوپیتھک مرض کی صحیح تشخیص نہیں کرتے، مریض کے مزاج کو نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھا ہوا ہے کہ انسان مردہ حالت میں نوجوان ہو جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کرنے کو ایک تو معالج پیسے کے زور پہ اس کو روک لیتے ہیں کہ کوئی اچھی رقم خرچے گا تو دیں گے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ معالج کو اتنا سینس نہیں ہوتا کہ کس طبیعت میں یہ چیز دینی چاہیے اور کس میں یہ موافق آئے گی، کس میں نہیں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ہمارے جسم اتنے انفیکٹ ہو چکے ہیں کہ اگر ہم اپنی زمینی طور پہ چلنا اور سوچنا، یہ صلاحیتوں پہ زور دے کے غور کریں تو ہمیں یہ خود فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آج ہماری صحت بگڑ کیوں رہی ہے۔ جس طرح کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر ایک بائک کی تھوڑی ریس زیادہ ہو جائے تو دوسرا آدمی فوراً بولتا ہے یار اس کو ریس اب نہیں دینا، یہ پہلے اوور ہو چکی ہے۔ کیا ہماری غذائیں ہم کو اوور نہیں کرتی؟
यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, मैदे की तजाबियत, बद हजमी, ये चीज़ें क्यों हैं कि ओवर खाने की वजह से। ओवर ईटिंग, सही। दूसरी बात ये है कि हम अपने जिस्म को अंदरूनी तौर पे अगर ये देखें, कोल्ड ड्रिंक के इतने शौकीन हो चुके हैं कि अगर मछली जैसी चीज़ भी हम खा रहे हैं ना, फिश और चिकन जी, और मीट वगैरह, तो इसके बाद भी हमें कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। सही। एक तरफ पाए के प्याले में 2 पाए शोरबा पड़ा होता है सही। और इंसान खा रहा है, दूसरी तरफ वो लस्सी पी रहा होता है। क्या इन कम जहन लोगों को ये इल्म कौन देगा सही। कि आप लस्सी की ठंडक ले रहे हैं या पायों की ताकत ले रहे हैं? सही। अगरचे मुआलिज हजरात की तरफ तवज्जो की जाए तो वो इंसान को सही तरीके पे गाइड करने की बजाय सिर्फ दवाइयों पे उकसाते हैं, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो। सही। जब तक इंसान एक बाइक की मांद ही फिर मिसाल दूंगा, पेट्रोल गलत डाला जाए तो क्या मैकेनिक उस इंजन को खोल देगा, या उसको ये हकीकत मालूम पहले करनी चाहिए कि कब पेट्रोल डाला था और उस वक्त ये गाड़ी कैसी चल रही थी। सही। अगर वो गाड़ी उस वक्त ठीक चल रही थी तो अब पेट्रोल कहाँ से डाला गया, गाड़ी मिस क्यों कर रही है? सही। हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दे रहे, ना खुद ना फिर वही लालची तबीब, हकीम, डॉक्टर। तो टेस्टों पे कमीशन और दवाइयों पे खर्चा और गैर ज़रूरी बातों पे उलझा के उनके सिर्फ जेबें खाली की जा रही हैं। सही। अगर मरीज़ की तशखीस में एक बात अहम किरदार अदा करती है कि कोई भी मरीज़ अगर घर में बैठ के पहले ये सोचे कि हमें आज क्या हुआ और कब से ये मसला हुआ, आज हमने क्या खाया, तबीयत ख़राब क्यों हुई और किस वजह से आज हमारी तबीयत ख़राब हुई है, अगर मुआलिज ये पूछ तो नहीं रहा तो कम से कम खुद जाके तो बता सकते हैं मरीज़। जब मरीज़ बताता नहीं, मुआलिज पूछता नहीं, तो फिर कल तबीयत बेहतर थी, वही बाइक वाली मिसाल, तो आज तबीयत ख़राब है, उसके बेजा टेस्ट, बेजा खर्चे, बेजा दवाइयाँ, महीने का टेस्ट। अभी पता चला यार मैंने कल एक की बजाय 2 रोटियाँ खा ली थी, मेरी तबीयत तब ख़राब हुई थी, महीने की दवाई तो मेरी खाते में चलेगी बास कट के। तो इसलिए खुदारा ये सबसे पहली बात है, मुस्तनद वो मुआलिज नहीं होता कि जो डिग्री लेके बैठ जाता है, मुस्तनद वो मुआलिज होता है जो आपकी तबीयत की सही तशखीस करता है और सही तशखीस पे आपको अमली तौर पे ये समझाता, बताता है कि आपको आपके मजाज के मुताबिक ये बात गलत है, ये ग़िज़ा गलत है, ये मौसम गलत है और ये आपका तरीका गलत है। और इसके बाद जब हम इस चीज़ों पे गौर करते हैं तो फिर आज ग़िज़ा का कसूर इतना ज़्यादा है कि हम ग़िज़ा को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ग़िज़ा के सही इस्तेमाल करने से बीमारियाँ आज भी कम है जिस तरह के 50 साल पहले कम थी। अच्छा हकीम साहब, कता कलामी के लिए माजरत, कोई आप हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, दोस्त हजरात हैं, उनको कोई ऐसी हेल्थी टिप्स देंगे कि कोई ऐसी फूड जिसको बच के या मॉडर्न दौर में कुछ चंद एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके वो इन बीमारियों से बच सकें जो हर दूसरे बंदे में पाई जा रही हैं। हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैदे के जो मसाइल हैं वो बेशुमार बंदों में पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो जिनसी मसाइल हैं, नौजवान जो है वगैरह, इसके लिए कोई सिंपल सी फूड की कोई ऐसी टिप्स या रोज़मर्रा ज़िंदगी की ऐसी खाने पीने की कोई टाइमिंग या कोई खाने पीने का तरीक़ाकार या कोई ऐसी टिप्स या कौन सी ग़िज़ाएँ जिनसे बच के इंसान इन बीमारियों से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सके, चंद एक ऐसी हमें कोई टिप्स जो है ना वो शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स के साथ। पहली बेटा बात यह है कि इंसान को 24 घंटे में आधा पाव गोश्त खाना चाहिए। सही। जब हम आधा किलो खाएंगे तो फिर ओवर होने वाली बात है, वही विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह जब इतने ज़्यादा मिलेंगे जिस्म को जी। तो वो कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बनेंगे, खून गाढ़ा होगा, तो जिनसियात का, जोड़ों का मसला, मैदे का, जिगर का मसला पैदा हो गया। सही। दूसरी बात ये है कि जब एक ग़िज़ा हज़म होती है तो दूसरी ग़िज़ा उसके बाद ली जाए। अगर किसी वक्त भूख प्यास का वक्त आ भी जाए तो हल्की फुल्की कोई ना कोई ग़िज़ा ले ली जाए, ये ना कहा जाए कि मैंने फ़लाँ जगह से जाके यही कुछ खाना है। एक दूसरी बात बेटा ये है कि अगर इंसान ठंडा लेता है तो उसको ठंडा उस कदर चाहिए कि उसको पता चले कि मैं अपनी सेहत के लिए जितना ठंडा वो ले रहा हूँ, ना कि मैं शौक़ की बिना पे ले रहा हूँ। तीसरी बात ये है कि हम जिनसी तौर पे
मशक्क़त करना छोड़ चुके हैं, जिस तरह के जिनसियात में इंसान का पैदल चलना। सही। पैदल चलने से इंसान के गुर्दों का फेल होना, ये अमल में काफ़ी कमी आ जाती है, बल्कि सही। ना होने के बराबर रह जाती है। जिगर में भी वही प्रॉब्लम के जो जिगर खा लिया, सो लिया, बैठ लिया, उठ लिया, बाइक पे सफ़र कर लिया, गाड़ी पे बैठ गए, तो ये चीज़ें हजम होती नहीं, तो इंसान कहता है मैं अच्छा खासा खाता हूँ फिर भी कमज़ोर हो रहा हूँ, लेकिन इसके बाद खाता तो हूँ, उसका अखराज नहीं हो रहा। सही। अखराज ना होने के लिए कभी सोचता नहीं, सीधा डायरेक्ट हकीम या डॉक्टर के पास चला जाता है। उसको ये क्यों इल्म नहीं कि मैं जो ग़िज़ा ले रहा हूँ ये मुझे अगर बदलनी पड़ती है, मेरी तबीयत में ख़राबी कर रही है, तो मैं किसी अच्छे दाना पिछली वाले उम्र वाले जो आज से तकरीबन 60-70 साल जिनकी उम्र है, उनसे थोड़ी सी मशावरत कर लूँ। आज कल के लुटेरा डॉक्टरों हकीमों से वो देहाती आदमी बेहतर आपको मिलेगा, जो अपनी ज़िंदगी की सिर्फ तफसील तो बताएगा लेकिन आपके हक़ में बेहतर होगी। एक दूसरी बात बेटा ये है कि इंसान एक तो कब्ज़ ना होने दे, सही। दूसरा मसनूई ठंडक का इस्तेमाल कम से कम करे। कब्ज़ ना होने देने के लिए कौन सी फूड्स हैं जिनको अवॉइड कर सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बंदा ना खा के बच सकता है कब्ज़ बेटा से? बेज़रर तरीका, पहले तो मैं इलाज के तौर पे एक ग़िज़ाई इलाज बताऊंगा। जी। अगर नब्ज़ पीछे रह के बारीक चल के, हर बंदा अपनी नब्ज़ को इतना तो जान सकता है ना, नब्ज़ पे हाथ रखे और गौर करे मेरी नब्ज़ बारीक है, पीछे रह के चल रही है, उस आदमी को नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका तकरीबन 5 से 6-7 ग्राम तक और 1 पाव नीम गर्म दूध गाय का हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सही। नीम गर्म दूध में मीठा डाल सकते हैं, नहीं डाले तो उसकी मर्ज़ी। सही। तो उसको रोज़ाना पी ले तो ये बेहतरीन तरीका होगा उसकी तबीयत मैदे का। जब मैदे का निज़ाम ठीक होगा, जिस तरह कहते हैं कि एक निज़ाम अंदर मैदे का जो भरा पड़ा होता है इंसान बोझल हो जाता है, सही। अगर वो खारिज हो जाते हैं इंसान रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह सारे अज़ा पे ज़ाय तनफ़्फ़ुस नालियाँ जो सांस वाली हैं ये सारी खुल जाती हैं। सही। तो इसलिए जब नब्ज़ पीछे रह के चल रही हो तो नीम गर्म दूध में इसबगोल का छिलका बहुत मुफीद है। अगर नब्ज़ मोटी आगे रह के चल रही हो तो ऐसी हालत में अगर कब्ज़ हो तो हरीड़ का मुरब्बा, 1 पाव नीम गर्म दूध और 2 या 3 दाने हरीड़ का मुरब्बा 1 हफ्ता के इस्तेमाल से तबीयत में तब्दीली महसूस हो जाएगी। और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे महीना 10 दिन 15 दिन भी इस्तेमाल किया जाए, लेकिन तबीयत को जैसे ही अपनी नब्ज़ को साथ साथ चेक करें, जैसे नब्ज़ पीछे रहने वाली आगे ज़्यादा या आगे रहने वाली पीछे ज़्यादा आ जाए तो फिर तरक कर दे या कम कर दे। सही। अच्छा दोस्तों, ये बात हो रही थी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इतना शायद आप भी इतना लंबी वीडियो ना ही देखें, बिकॉज़ बिज़ी टाइम है, हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है। तो हकीम साहब से जो ख़ुलासा है उनकी बातों का वो यही है कि एक तो जो है वो आप जो मैदे के मसाइल हैं वो ये कह रहे हैं कि इनसे जो है ना मैदे के मसाइल से इस सूरत में बचा जा सकता है कि आप जो है वो रात के वक्त नीम गर्म जो दूध है ना उसमें छिलका इसबगोल जो है वो 1.5 चम्मच 1.5 स्पून जो है ना वो इसबगोल उसमें डाल के घोल के उसको पी लें। इससे काफ़ी जो मैदे के मसाइल हैं उनमें आपको जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। और बाकी जो मामलात हैं आपकी हेल्थ से मुतल्लिका वो ये कह रहे हैं कि जो है ना उसमें पैदल जो चलना है ना ये बहुत ज़्यादा मुफीद है उनसे जो है। तो बाकी हर्बल मेडिसिन्स के मतलब आप अगर इनसे किसी किस्म का कोई मशवरा लेना चाहें तो वो फ़ोन नंबर और इनका कार्ड आपके साथ शेयर कर दिया गया है, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और बाकी किसी किस्म का भी किसी को कोई मसला है तो वो इनसे जो है डिटेल वाइज डिस्कस कर सकता है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। नमाज के वक्त मोबाइल अगर साइलेंट पे हो तो 2 कॉलें आने पे मिस कॉल बैक हो जाएगी। सही। तो ये कह रहे हैं कि अगर वो आप कॉल कर रहे हैं तो अगर आंसर नहीं हो रहा तो समझ लें कि नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज के बाद आपसे जो है ना वो कांटेक्ट इंशाल्लाह कर लेंगे। तो इसके साथ इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा।